Good morning students, here is your lesson number 6. This is your textual exercise section A, oral questions. Which movement on the earth causes different seasons? So revolution की वजह से हमारे अर्थ पर different seasons होते हैं. Why do we see stars mostly at night? We see stars mostly at night because during the daytime the sunlight is brighter than the light of the stars. हम रात को इसलिए स्टार्स देख पाते हैं क्योंकि सनलाइट की जो लाइट होती है वो काफ़ी ब्राइटर होती है, इसलिए स्टार्स जो हैं हमें डे टाइम में नहीं दिख पाते और हमें नाइट में ही स्टार्स दिखते हैं. नेम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज जुपिटर. नेम द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज सैटर्न. हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज जुपिटर हैव? 67. नेम द रेड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मार्स. द अर्थ इज कॉल्ड द डैश प्लैनेट, blue planet. The imaginary line that divides the earth into two equal halves is called equator. This is your next page. The coldest planet of the solar system is Neptune. Circle the odd ones, give reason for your choice. Venus, Earth, Sun. So Venus, Earth, Sun. So Sun, because others are planets where it is a star. Axis Earth, equator, Earth. Others are imaginary lines related to the Earth. Solar day, solar year, hemisphere. Others are related to Sun. Now fill in the blanks with the help of given words. The dash is a natural satellite of the Earth. Moon. Dash is the smallest planet. Mercury. Dash is a planet with rings around it. Saturn. Earth rotates from dash on its axis, west to east. Places getting slanted sun rays at certain time of the year have winter. Now identify the following planets and write the name in spaces provided. So this is Saturn, this is Jupiter, and this is Mars. Multiple choice question, scientific practical skills. A dash gives out its own heat and light, star. The part of the earth facing the sun has day. Name the planet where life exists, earth. Which planet is called the morning and evening star? Venus. Which is the largest planet in our solar system? Jupiter. Which planet is closest to the sun? Mercury. What is a meteor? When a meteoroid enters the earth's atmosphere, it is called meteor. जब meteoroid जो है वो अर्थ सरफेस पे जब एंटर होता है तब उसे meteor कहते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं तारा टूटता है, एक्चुअली तारा नहीं, वो meteor है. Why does the sun appear to rise in the east and set in the west? The earth rotates from west to east axis, so the sun appears to rise in the east and सेट इन द वेस्ट. क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट में अपनी एक्सिस पे, तो सन क्या करता है? राइज करता है ईस्ट पे और सेट होता है वेस्ट पे. नाउ थर्ड वन, द सन गिव्स इट्स हीट एंड लाइट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज द सन मेड अप ऑफ? सन इज मेड अप ऑफ गैसेस. व्हाट वैल्यू डू वी हैव फ्रॉम द सन? वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द basis of money, religion, gender, etc. We should treat each living being equal. हमें किसी का भी डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए बाय मनी, बाय रिलीजन, बाय जेंडर, और हमें हमेशा हर लिविंग बीइंग को अच्छे से इक्वली ट्रीट करना चाहिए. Why does life exist only on earth? The life has water and air, oxygen. Does life exist only on the earth? क्योंकि अर्थ पर वाटर और एयर है, ऑक्सीजन है, इसलिए अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. वाई डज मून शाइन? मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. मून इसलिए शाइन करता है क्योंकि सन की जो लाइट है वो मून पर गिरती है और इस वजह से मून जो है वो शाइन करता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, while the movement of the earth around the sun is called revolution. Rotation of the earth causes day and night, while revolution of the earth causes change in seasons. Spinning जो होता है अर्थ का, उसकी खुद की एक्सिस पे हम उसे रोटेशन कहते हैं. जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड मतलब रिवॉल्व करता है, दैट इज़ रिवॉल्यूशन.
और रोटेशन, अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होती है, और रिवॉल्यूशन से सीजन चेंजेस होते हैं। हाउ डज चेंज इन सीजन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ? The earth revolves around the sun. However, during the revolution, the earth remains tilted on its axis at an angle of 23.5 degree. As a result, at a certain time of the year, the northern hemisphere is bent towards sun, while the southern hemisphere is away from it. The hemisphere which is tilted towards the sun gets the direct sun rays, so it is warmer. It has summer. At the same time, the other hemisphere that is away from the sun gets slanting sun ray, so it is cooler. It has winter. अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है. हाउएवर रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन द अर्थ रिमेन्स टिल्ड. अर्थ जो है वो टिल्ड होता है उसकी एक्सिस पे और 23.5 डिग्री एंगल पे. एज ए रिजल्ट सर्टेन टाइम ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बेंड. और कुछ टाइम के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो बेंड होता है सन के टूवर्ड्स, और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो अवे होता है. सो हेमिस्फीयर विच इज़ टिल्ड टुवर्ड्स द सन, जो ऐसे टिल्ड होगा, जो हेमिस्फीयर टिल्ड होगा वहाँ पर गेट्स द डायरेक्ट सन रेज, उसको सन की रेज डायरेक्ट मिलेगी. सो इट इज़ वार्मर, तो वो वार्मर होगा. इट हैज़ समर, और वहाँ पर समर होगा. एट द सेम टाइम द अदर हेमिस्फीयर दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन, और उसी सेम टाइम पे दूसरे हेमिस्फीयर में जो सन से दूर रहेगा, स्लांटिंग रेज सन की होगी, तो वहाँ पे कूलर होगा, तो वहाँ पर विंटर होगा. नाउ थर्ड वन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. द अर्थ हैज़ एग लाइक स्ट्रक्चर. अर्थ का जो स्ट्रक्चर वो एग लाइक स्ट्रक्चर है. एट इट्स सेंटर ऑफ द योक मेंटल कोर है, विच इज सराउंडेड बाय एन एग दैट इज वाइट सॉफ्ट रॉक्स कॉल्ड मेंटल, एंड आउटर हार्ड कवर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड क्रस्ट. जो वाइट सॉफ्ट रॉक्स होते हैं उसे हम मेंटल कहते हैं, और आउटर हेड जो आउटर कवर है रॉक्स का उसे हम क्रस्ट कहते हैं. सो क्रस्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट्स थिकनेस varies from place to place. It varies from 6 to 11 kilometer under oceans, but at high mountains it is about 70 kilometer thick. It is made up of rocks. जो आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, उसकी थिकनेस काफ़ी प्लेस टू प्लेस जो है वो ज़्यादा है, और इट वेरीज 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशंस. 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशंस है, और हाई माउंटेन्स में 70 किलोमीटर थिक है, जो कि रॉक से बनी हुई है. मेंटल, इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ अर्थ बिटवीन क्रस्ट एंड कोर. मिडल लेयर है और क्रस्ट और कोर के बीच का अर्थ में. इट इज़ पार्शली मोल्टन लेयर, वो मोल्टन लेयर का कहते हैं उसे. इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक. 2900 किलोमीटर थिक है, और कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम है. ना कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कोर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसका आउटर और इनर कोर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज आउटर एंड इनर कोर. द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक. जो आउटर कोर है वो 23 किलोमीटर थिक है, 2300 किलोमीटर थिक. इट इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन एंड निकल. मोल्टन आयरन और निकल से बना हुआ है. आयरन इनर कोर इज ऑल्सो मेड ऑफ आयरन एंड निकल. इनर कोर में भी आयरन और निकल है. इट इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर. इज लाइक अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल. वो सॉलिड बॉल ऑफ मेटल की तरह है. नाउ थिंक एंड आंसर. द सन इज ऑल्सो स्टार, बट इट लुक्स वेरी बिग एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स. वाई? द सन इज नियरेस्ट टू द स्टार्स टू द अर्थ. दस इट लुक्स लाइक अ कम्पेयर टू द स्टार. सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के. दस इट लुक्स बिग एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स. और वो इसलिए बड़ा लगता है दूसरे स्टार्स से कंपेयर करते हैं तो, जबकि स्टार्स भी है वो बड़े हैं. काफ़ी किलोमीटर अवे है वो सन और अर्थ से, इसलिए वो हमें छोटे लगते हैं, और सन जो है हमारे अर्थ के पास है इसलिए हमें वो बड़ा लगता है. रिया रीड्स अबाउट सिटी वेर इट इज़ लाइक समर थ्रू आउट द ईयर विथ 12 hours ऑफ day and 12 hours of night every day. Can you guess where this place will be located with respect to equator? What is possible reason behind this kind of climatic condition of the plane? The place is located at or near the equator. The place is receives the same amount of sunlight. जो place जो है वो इक्वेटर के पास ही होगा, और उसे सेम अमाउंट का सनलाइट भी मिलता होगा, और सेम अमाउंट का 12 hours का समर आवर्स होगा डे का, 12 hours का नाइट होगा थ्रू आउट द ईयर. नाउ एक्टिविटी.
This is what grid. Planet that takes 12 years to complete one revolution, that is Uranus. So Uranus is here. The third largest planet, that is Mars. Mars is here. The second largest, the red planet, the third largest planet, planet that takes 1200 years to complete the one revolution, that is Jupiter. And the third largest planet, that is Uranus, and red planet, that is Mars. The second largest planet is Saturn. Saturn is here. The planet known as evening and morning star, that is Venus. Venus is here. Also called blue planet. Earth. Earth is here. So here is a lesson number 6 textual exercise. Question answer is finished. I hope this video will help you to learn at home. Home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.